Best education you will ever get is traveling. Nothing teaches you more than exploring the world and accumulative experiences. Heartiest greeting to one and all present here. Welcome to our webinar or studying abroad. Today, I, Ritika, on the behalf of LMS2 Teaching Solution, wholeheartedly welcome you all here for our career counseling session, day 6, on the topic diving deeper into studying in the USA in association with Prepster. Today, we will explore the unique opportunity, challenges, and experiences that come with pursuing education in the United States. From top university to cultural, join us as we uncover that what makes studying in the USA as a transformative journey. Before beginning today's session, we would like to introduce ourselves as an educational service provider managed by a panel of experienced and eminent educationists with a cumulative experience of more than 10 decades. We cater to the individual need of schools, teachers, students, and parents by providing them with the best job opportunities. We request you to stay connected with us till the end of the session as a feedback form will be shared with you at the end. You are requested to fill out the forms to mark your attendance. A certificate of participation will be issued based on that. So stay with us for an insightful session. Now I would like to welcome our resource person of the day, Mr. Karun Meditar, Medirata, a founder and quant expert at Prepster Education. Sir has taught more than 4,500 students for various standardized tests like ACT, SAT, GRE, GMAT, SAT, SAT, subjects, etc. over 7 years. His passion for helping others to achieve their dreams is commendable. So it's a matter of great honor and delight to welcome you on behalf of LMS2 Teaching Solutions. Now I request the sir to take over the session and share his expertise with us. Thank you so much, Ritika, for welcoming me. And good afternoon, everybody who is attending this webinar today. So let me share my screen with you all. I hope it's visible to you all. Yes, sir. Perfect. So, students, first of all, I just want to know that are you ready to have a comprehensive guide to have your best education in USA? If yes, then yes, Prepster Education can help you with this. So as Ritika has already told you, मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ. So I'm the founder and quant trainer at Prepster Education. So it's not just we're dealing with the studying in USA. So we help students with prep programs, particularly study abroad. So be it Canada, Australia, USA, Germany, Australia, Singapore, anywhere, we can send you abroad to study. So starting with the program, the prep programs, we offer you SAT coaching, IELTS coaching, TOEFL, GRE, GMAT, and AP, advanced placements. With that, we also offer you application assistance and career counseling guidance for the study abroad as well. And then we can help you with your application processes, getting you the admits from the top tier universities anywhere in the world, and then sending you abroad for your studies. We can help you with your education loans as well as securing your traveling tickets and all the other services, right? So let me start today's session. So Prepster Education is ready to be your comprehensive guide to have a best education in USA. So the first thing is why study in USA? So what's in there for us in USA? Why not India? So क्या प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या उनका सिस्टम कैसे बेटर है हमसे, या हम उनसे कैसे बेटर हो सकते हैं? सो हम थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे. सो studying in USA can be a life-changing experience for every college student.
इट्स नॉट जस्ट आप बाहर पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ एक एक्सपोजर मिल रहा है, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप वहाँ पे पैकेज, स्टूडेंट्स का होता है रिक्वायरमेंट कि सर पैकेज अच्छा मिल जाता है या सर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, दैट इज करेक्ट, वो है। बट आप एक जो नेटवर्क अपना बिल्ड करोगे, जो अपना वहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड करोगे, जो आप एक कल्चर के साथ वहाँ पे अपने आप को अटैच करते हो, प्लस ओवरऑल यस आपके करियर बेनिफिट्स आपके पास हैं ही हैं, सो वो सब आपको रखते हुए तो यूएस इज वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस टुडे। इनफैक्ट बहुत टाइम से स्टूडेंट्स के लिए टॉप डेस्टिनेशन यूएस ही है। एज पर अ फिगर अगर मैं आपको बताऊं, सो एज पर द स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स 2024 का डेटा जो है, वो कहता है कि अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स आर करंटली स्टडिंग अब्रॉड, out of which 5 lakh students study in USA, 2 lakhs in Canada and 1 lakh in Australia. And this 15 lakh figure, this is a 20% increase from last year. So students are actually opting to study abroad. मेन हम बात करते हैं यूएसए में पढ़ने का फायदा क्या है मेरे को, ठीक है? सो व्हाई इन यूएसए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है वो आपको यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज से नहीं मिल पाएगा। तो आप कल्चर्स हैं, व्यू पॉइंट्स जो हैं, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हो, अगर आप स्टडी अब्रॉड करते हो, सो दैट इज अगेन अ बेटर अपॉर्चुनिटी। एक्सीलेंस वाइज अगर देखा जाए तो आपकी एकेडमिक जो अचीवमेंट्स हैं, आपका जो टॉप टियर एजुकेशन सिस्टम में, इफ यू गेट इनटू अ टॉप टियर यूनिवर्सिटी, तो जो आपको प्रोग्राम्स वहां पे ऑफर होंगे, जो वहां पे आप कनेक्शंस अपने बिल्ड करोगे, द काइंड ऑफ पैकेज दैट यू विल हैव ओवर देयर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट इन इंडिया। डिटेल में अगर बात करें तो क्या क्या फायदे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एजुकेशन, so you'll have a chance to see a side of your major that you may not have been exposed to at home। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जैसे हमारे पास कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव कोर्स बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो हमको क्या करना होता है, हमारा प्री डिफाइंड कोर्सेज होते हैं कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने, सेकंड सेमेस्टर दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेकंड ईयर you'll स्टडी कोर सब्जेक्ट्स, उसकी भी लिस्ट ऑलरेडी रेडी होती है। एंड वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज वुड गिव यू सम ऑप्शंस टू सेलेक्ट, इलेक्टिव्स जिसको आप कहते हो। बट एजुकेशन की अगर हम बात करें यूएसए में, तो यूएसए का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल है। दे मेजरली एम्फसाइज ऑन क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, प्लस वो क्या करेंगे, उनके पास बहुत सारे मेजर्स होते हैं। सो आई डोंट नो इफ students in this session are from IB schools or not, but IB curriculum more or less हम वही फॉलो करते हैं जो एजुकेशन सिस्टम यूएसए का है, तो उसमें मेजर्स एंड माइनर्स होते हैं। सो अलॉन्ग विद, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा है, उसका मेजर है कि यस, मेजर का मतलब क्या हुआ कि आप कंप्यूटर साइंस में आप अपनी डिग्री लोगे, अलॉन्ग विद दैट यू कैन सेलेक्ट माइनर्स, एंड वो नीड नॉट नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है कि वो माइनर जो है आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस में मेजर कर रहा है, एंड इफ ही और शी डिसाइड्स कि मेरे को इकोनॉमिक्स भी चाहिए, सो यू कैन पिक इकोनॉमिक्स एज योर माइनर सब्जेक्ट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम आपको यूएसए देता है, इंडिया में नहीं मिलेगा। सेकेंड मेन रीजन इज आपकी लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है? यहाँ पे मोर और लेस जो हमारी क्लासेस होती हैं, बीट योर स्कूल्स, बीट योर कॉलेजेस, दैट इज अ मिक्स ऑफ कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल मैं खुद पंजाब से, अगर मैंने अपनी मास्टर्स की है, तो वहाँ पे इंग्लिश इतनी मेजर लैंग्वेज नहीं थी, तो वहाँ पे क्या था, सो इट वाज अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, राइट? बट आप अपनी लैंग्वेज स्किल को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो वहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए में ऑब्वियसली द ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। यू गो टू जर्मनी, तो जर्मनी में यू नीड टू हैव जर्मन लैंग्वेज। तो इससे फायदा क्या होता है कि देयर इज नथिंग बेटर इन टू गेटिंग इन टू अ कंट्री एंड लर्न देयर लैंग्वेज। यहाँ पे आप सीख सकते हो, बट वहां पे आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। थर्ड मेजर पॉइंट इज यू गेट टू सी द वर्ल्ड, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, राइट? एक ब्रांड न्यू कंट्री आप एक्सपीरियंस करते हो, जिसमें आउटलुक्स नए हैं, कस्टम्स नए हैं, एक्टिविटीज नए हैं, लोग नए हैं, सो काइंड ऑफ यू लर्न देयर। आप बहुत सारी चीजें आप अपने साथ वापस लेके आते हो, और इवन इफ यू डिसाइड यू वांट टू स्टे बैक ऑप्शन,
सो वहां पे बहुत सारी चीजें अपने साथ न्यू एक्सपीरियंसेस गैदर करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज करियर अपॉर्चुनिटी। सो इफ यू फिनिश योर स्टडी अब्रॉड, लेट्स से आप यूएसए में अपनी स्टडी फिनिश करते हो, एंड आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा वेदर यू वांट रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री और यू वांट स्टे बैक देयर। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, जो आपने लैंग्वेज स्किल गेन की है, जो आपका पर्सपेक्टिव कल्चर का है, जो आपका एजुकेशन हुआ है, और जो आपकी विलिंगनेस हुई है लर्न, मतलब आपके जितने भी एक्सपीरियंस हैं, वो आपके जो फ्यूचर एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो वहीं पे हो, उसके लिए एक वो बहुत अट्रैक्टिव फीचर है। स्टडी अब्रॉड है आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि सर मेरे को वापस इंडिया आके अपना जॉब करना है, या आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन इन इंडिया, या आप जॉब भी करते हो, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं या बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आप लोगों के लिए वो रेडी होते हैं, क्योंकि दे नो व्हाट यू गेट इन यूएसए, द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट यू विल हैव ओवर देयर, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आपको वहाँ पे टेक्नोलॉजी से आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, वो बहुत बेटर होगा ऑब्वियसली दे नो एज कम्पेयर टू इंडिया। बेसिक डिफरेंस अगर हम बात कर अब, कि भैया हमने बार बार सर कह रहे हैं कि यूएसए यूएसए यूएसए, मैं तो हर बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नो कंट्री अदर देन यूएसए कैन गिव यू टू थिंग्स, वन इज द बेस्ट एजुकेशन, सेकंड इज द पैकेज दैट यू गेट आफ्टर यू ग्रेजुएट। ठीक है, जितना पैसा आपको यूएसए में देगा वो आपको शायद इंडिया में ना मिल पाए, मिलेगा भी तो आपकी जो चांसेस हैं गेटिंग तो दैट पैकेज, लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू नो पर्सन्स who have graduated from top tier universities in India and they are earning more than 70-80 lakhs or let's say 1 CR as their annual package? कितने लोगों को जानते होगे आप जानते होगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जानते होगे, but you can count them on your tips. The students I have sent abroad, everyone on approximately on average they are earning more than 90,000 to $100,000, which converts to around 75 to between 75 to 85 lakhs per annum. ठीक है, and that too if you have not graduated from a very good university top tier, even if it's a mediocre college, you'll be earning $90,000. तो मेजर डिफरेंस अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया और यूएसए का, वो क्या है? तो एज आई हैव टोल्ड यू, यूएसए का जो सिस्टम है ना, इंडिया के सिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स पे डिफर करता है। सो फर्स्ट इज लेट्स से स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं हम, अलग है हमारा स्ट्रक्चर, ग्रेडिंग सिस्टम अलग है, एंट्रेंस टेस्ट जो हम देते हैं इंडिया में और यूएसए में वो डिफरेंट है, एडमिशन का प्रोसेस एंटायरली डिफरेंट है, टीचिंग स्टाइल, करिकुलम और जो इवैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं आपके वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस का एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल है, क्रिटिकल थिंकिंग पे और एनालिटिकल थिंकिंग पे ये बहुत एम्फसाइज करते हैं। इंडिया का सिस्टम जो है आई वुड से इज मोर ऑफ रिजिड एंड इट फोकसेस ऑन मेमोराइजिंग। सबको पता है सीबीएसई बोर्ड में आज की डेट में नंबर्स लाना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, कई लोग आप मेरे से डिफर भी करोगे, नहीं सर हमने तो मेहनत की थी। ठीक है, हमारे टाइम पे जब हम सीबीएसई दे रहे थे तो सीबीएसई उस टाइम पे गेटिंग 80 85 90% इज वेरी टफ। आई एम श्योर अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे और समवन सीनियर जो आपसे 25-30 साल पहले ग्रेजुएट हुए होंगे अपने सीबीएसई बोर्ड से, दे कैन लाइक रेज अ हैंड, वो मेरे को बता सकते हैं कि यस कि टफ था भैया, इस टाइम पे अब नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, हम क्योंकि एक जिसको हम कहते हैं ना रट्टा मारना, रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन और मेमोराइजिंग पे हम डिपेंड करते हैं। इंडिया का सिस्टम यही है मेजरली। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारा 10+2 सिस्टम जिसको आप कहते हो, और एजुकेशन सिस्टम जो यूएसए का दैट इज नोन एज K-12। तो अगेन प्राइमरी और सेकेंडरी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन। मेजर डिफरेंस कहाँ आएगा अब यहाँ पे? हम यहाँ पे अपनी डिग्रीज करते हैं तो इंडिया में मेजरली जो हमारी डिग्रीज होती हैं दैट इज 3 ईयर और 4 ईयर इफ यू आर गोइंग इनटू अ साइंस बीटेक प्रोग्राम की अगर बात करें तो 4 ईयर, अदरवाइज 3 ईयर डिग्री कॉमन है। बट यूएसए इटसेल्फ मेजरली वहां पे जो डिग्रीज होती हैं अंडर ग्रेड की, दे कंसिडर इट एज अ 4 ईयर डिग्री। तो आपको वहां पे 4 साल बैचलर्स करनी होती है, इंडिया में यूजुअली वो बैचलर्स 3 साल की है। ग्रेडिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, आई लेट यू गो थ्रू द स्लाइड्स अगेन, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आपको चाहूंगा अपने बिहाफ पे। अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो यूएसए में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो लेटर बेस्ड होता है, एंड वो ए से एफ के बीच में लेटर बेस्ड होते हैं। इंडिया में हम परसेंटेज सिस्टम फॉलो करते हैं। एंड अगर आपने सुना होगा या आपके कोई फ्रेंड्स होंगे या आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो ऑलरेडी स्टडिंग इन यूएसए और अब्रॉड, सो दे आल्सो फॉलो अ जीपीए सिस्टम, अगर आपको पता हो।
सो उनकी जीपीए सिस्टम 0 to 4 के बीच में होती है रादर देन आर। हमारे बीटेक्स की अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो बीटेक जब पढ़ते हैं तो उसमें 0 to 10 का सीजीपीए सिस्टम होता है, उनका 0 to 4 के बीच में स्केल चलता है, तो स्केल का डिफरेंस हो जाता है, उसका कन्वर्जन अलग हो जाता है। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ यू अभी सब मोस्ट ऑफ यू आपने एग्जाम्स दिए होंगे, आईआईटी आप देते हो, मेंस जेई, राइट। आईआईटी के लिए सीयूईटी का आपने यूजी एग्जाम दिया है, एग्जाम्स दिए हैं। इसका रिलेशन इतना यूएस के बेसिस पे नहीं है, तो यूएस अपना एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, दैट इज एसएटी, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। एसीटी इज अमेरिकन कॉलेज टेस्ट। GMAT GRE if you are pursuing your masters in USA, if you plan to decide to go for your masters, तो ये भी एंट्रेंस टेस्ट हैं, बट इनका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होता है। आई वुड से एसएटी और एसीटी थोड़े से आई वुड से इजी होते हैं रादर देन योर सीयूईटी एंड योर आईआईटी एग्जाम्स, क्योंकि हम हार्डकोर यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमको देना है, या इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इसका हम डिटेल में कर रहे हैं। एसएटी, जीआरई, जीएमएट, एसीटी जो भी एग्जाम्स हैं, इसमें आपके सिर्फ दो ही सेक्शंस होते हैं। सो वन इज योर वर्बल एबिलिटी, जो वर्बल होता है इंग्लिश आपका, एंड अनदर वन इज क्वांट व्हिच इज योर मैथ्स। सो बेस्ड ऑन दीज टू आपका जो स्कोरिंग होता है, आपको जो नंबर्स मिलते हैं उस पे मिलता है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इंडिया में अगर आपको पता है कि भैया सब माँ बाप भी पीछे पड़े हुए हैं, टीचर्स भी पीछे पड़े हैं, भैया कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, अभी आएंगे कट ऑफ पे भी आएंगे, मैं आपको दूंगा, तो ये आपको स्कोर चाहिए, आपको ये करना है, हर कोई भाग रखा हुआ है। यूएसए में जो सिस्टम है वो बहुत एक सिस्टमैटिक सिस्टम है। वो क्या करते हैं, वो आपके ना ओवरऑल या कंप्लीट प्रोफाइल की असेसमेंट करते हैं। दे आर नॉट जस्ट आफ्टर योर स्कोर्स, ठीक है। एवरीवन गोइंग टू अ गुड यूनिवर्सिटी इन यूएसए वुड हैव अ गुड परसेंटेज और जीपीए, बट आप डिफर कैसे करते हो अपने पीयर से, तो आपको बहुत सारी चीजें, आपके एंट्रेंस के स्कोर जो होते हैं, यस ऑब्वियसली आपका एसएटी स्कोर कितना है या आइल्स का स्कोर कितना है, वो ध्यान में रखते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो आप एसेस सबमिट करोगे अपनी एप्लीकेशंस के साथ कि भैया आपको क्यों लिया जाए इस यूनिवर्सिटी में, आप ये प्रोग्राम क्यों करना चाह रहे हो, तो आपको हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एसेस लिखने होते हैं। आपको रेकमेंड कौन कर रहा है, तो यू रिक्वायर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, आगे हम उसकी थोड़ी बात कर लेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनको ना सिर्फ एक वो नहीं चाहिए कि एक स्टूडेंट चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा हो, दे वांट अ कंप्लीट प्रोफाइल। उनको एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी अच्छा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इंटर्न्स भी कर रखी हैं उसने, अलग अलग चीजें कर रखी हैं, एंड ऑल्सो सरप्लस में उसके पास एकेडमिक स्कोर अच्छे हैं, सो दैट इज अ गुड स्टूडेंट फॉर देम। टीचिंग मेथड की बात करें, इंटरैक्टिव लर्निंग होती है यूएसए में इंस्टेड ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं। क्या मेथड यूज कर रहे हैं, हमारा जो सोर्स है वो क्या है, लेक्चर है, टीचर जो लेक्चर दे रहा है और वही मेन सोर्स है हमारा इन्फॉर्मेशन का, और हमने क्या करना है कि फैक्ट्स और फिगर्स है वो मेमोराइज कर लो जी, भाई यही एग्जाम्स में आएगा, 10 ईयर सॉल्व कर लो, यही आएगा, अपने नंबर ले आओ। बट अगेन वो रट्टाफिकेशन है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें, राइट। यूएस में क्या है, क्लास डिस्कशन को एनकरेज करते हैं, आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के अंदर आपको करवाते हैं, ट्यूटोरियल्स, डिबेट्स में आपको पार्टिसिपेट करवाते हैं, स्टूडेंट्स को केस स्टडीज दी जाती हैं कि आप खुद सॉल्व करो, सो दैट यू गेट इनटू योर फील्ड। आपको स्पून फीड नहीं किया जाएगा एक तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो यूके जा रहा है पढ़ने, तो उनका असेसमेंट क्राइटेरिया उस यूनिवर्सिटी का क्या है, सो वो आपको लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स में 25% to 30% आपको पढ़ाएंगे, रेस्ट जो है वो आपको कह रहे हैं कि आप अपनी असेसमेंट करके आप सेल्फ स्टडी करो। सो दिल गिव यू असाइनमेंट्स, दिल गिव यू प्रोजेक्ट्स, दिल गिव यू केस स्टडीज, वो आपको खुद इंडल्ज करना है। सो क्विकली आई विल गो थ्रू दी स्लाइड्स। तो करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड इलेक्टिव ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताया। यूएसए में आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं आप उनमें से चूज कर सकते हो, ठीक है। वन सेकेंड। टीचिंग मेथड्स की अभी मैंने बात की है, तो इंडिया में क्या है, लेक्चर बेस्ड सिस्टम है, जो हमारे टीचर्स हैं वही हमारा सोर्स है सारा, रट्टाफिकेशन पे है। यूएसए में क्या है, डिस्कशंस होती हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, स्टूडेंट एंगेजमेंट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है उसको।
असेसमेंट की बात करें तो एग्जाम बेस्ड हमारा इंडिया में भैया वही कट ऑफ लाओ, हाई स्टेक्स हैं आपके। आपको जितनी अच्छी कट ऑफ लेके आओगे, जितनी अच्छी रैंक होगी भैया, उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिल जाएगा। इरिस्पेक्टिव यूएसए में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एसएटी स्कोर है, तो एसएटी बाय द वे आपको जो स्कोरिंग मिलती है, मैक्स यू कैन स्कोर इज 1600, सो 800 मैथ्स, 800 इंग्लिश, सो कंबाइंड स्कोर देखा जाता है। सो जरूरी नहीं है कि इफ यू आर गेटिंग 1500 प्लस ऑन योर एसएटी, देन आपको कॉलेजेस लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी ये इजीली आपको एडमिट कर देंगे। जो इंडिया में हमारा फंडा चलता है कि भैया जितनी हाई रैंक होगी उतना अच्छा हमारा आईआईटी जो है हमको एंटर करवा रहा है, डीयू का उतना ही अच्छा कॉलेज हमको ले रहा है। ऐसा वहां पे नहीं है, आपका अगेन ओवर प्रोफाइल देखी जाएगी। ठीक है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की अगर बात करें इंडिया की और यूएसए की, तो ऐसा नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बेकार है। बट यस, आई वुड से कि यस, हमारा थोड़ा सा जो सिस्टम है वो इम्प्रूव कर सकता है। इट विल टेक टाइम, एंड एज पर अ स्टडी अगर आप सर्च करो, सो एटलीस्ट 50 to 100 years हम लैक कर रहे हैं देन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूएसए, अगर उसका कंपैरिजन करो। तो इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं एक तरह से। बट इतने भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रही है मेरे को जितनी मेरे को यूएसए में ऑप्शन देती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिल रही है। यस, आई कैन पिक कॉमर्स के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स, आई कैन गो फॉर दैट। मेरे पास साइंस के लिए बहुत ऑप्शन है, मैं उसमें जा सकता हूँ। मेरे पास आर्ट्स के ऑप्शन है, मैं उसमें जा सकता हूँ। ठीक है। सेकेंड इज कल्चरल हेरिटेज। तो हमारा जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ना, हम उस पर बहुत रिलाई करते हैं। हमारा कल्चर जो है वो बहुत रिच है, एज यू ऑल नो। तो हम एशियन सिविलाइजेशन, फिलोसफी, आर्ट, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, इन सब पे हम बहुत ध्यान देते हैं। और यही हमारी एक तरह से आइडेंटिटी भी है। तो समवन हु इज गेटिंग इनटू दिस फील्ड रिलेटेड टू योर फिलोसफी, आर्ट्स, उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। बट अगेन अगर आप बाहर जाओ, तो बाहर अब यूएसए का कंपैरिजन करें यहाँ पे साथ बाय साथ, इसके साइड बाय साइड, तो यूएसए में क्या फायदा? अभी तो आप सिर्फ इंडियन आर्ट, कल्चर और ये सब सीखोगे ना। सो वहां पे जब आप यूएसए जाते हो तो आप ग्लोबल लेवल पे आ जाते हो। तो इट्स नॉट जस्ट आप कन्फाइन करोगे अपने आप को इंडिया के लिए, आप ग्लोबल लेवल पे सारी चीजें सीखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अफोर्डेबिलिटी। यस, बहुत सारे जो अच्छे कॉलेजेस हैं आपके, आईआईटीज, डीयू के अच्छे कॉलेज हैं, उनकी फीस लेस देन 1 लाख है पर ईयर। तो बहुत अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अगर हम यूएस से बात करें, जो उसकी आई वुड से एक वीकनेस भी है। एंड टेक्निकल, आजकल टेक्नोलॉजी पे मोदी भाई साहब जब से आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, एंड उनसे पहले भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। हम आईटी फील्ड में इंडिया इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग नेशंस जो आईटी में है। इनफैक्ट आपके जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट भैया भी जो है अपना काम मेजरली यूएस बेस्ड, इंडियन बेस्ड कंपनी से करवाते हैं। ठीक है। काफी लोगों को ये शायद ना पता हो। वीकनेस में कहाँ है? अब अगर आप कंपैरिजन करो तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यूएसए में देता है, उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। बहुत बड़ा कैंपस है हमारा। इफ एनी वन ऑफ यू हैज विजिटेड बीएचयू, अगर बीएचयू गए तो उनका कैंपस बहुत बड़ा है। ठीक है, हम उसको कहते हैं बहुत बड़ा कैंपस है। या आईटी दिल्ली है, उसका भी कैंपस बहुत बड़ा है। ट्रस्ट मी इफ आई एम टेलिंग यू कि अगर मैं यूएस की कोई मीडियोकर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करके आपको बताऊं, तो उससे वो ट्वाइस या थ्राइस होगा। ठीक है। जितने हमारे यहाँ पे कैंपसेस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक आप जब जाओगे कॉलेज तो आपकी एक बिल्डिंग, डेडिकेटेड बिल्डिंग होती है। सो फॉर एग्जांपल ये साइंस डिपार्टमेंट है, या आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है, या आर्ट्स डिपार्टमेंट है। तो उतनी बड़े जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उतनी तो उनकी लैब्स वगैरह होती हैं। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो बहुत साउंड है हमसे। उनको जो फंडिंग्स मिलती हैं वो बहुत बेटर है हमसे। हमको जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वंस इन ईयर। उनको जो फंडिंग, अगेन उनको भी फंडिंग वंस इन ईयर मिलती है, बट बहुत हेफ्टी अमाउंट होता है। सेकंड, जो क्वालिटी आपको मिलेगी उनकी एजुकेशन में, वो बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू आर। हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिस्पैरिटीज बहुत हैं, चीटिंग बहुत होती है, आपको पता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है। थर्ड, टीचर ट्रेनिंग। अगेन वो बहुत फोकस करते हैं अपने टीचर्स पे। दे वांट टू गेट द स्टूडेंट्स द बेस्ट फैकल्टीज जो हो सकती है उनके पास। फैकल्टीज उनकी कौन है, मैं आपको ये भी थोड़ा आइडिया देता था। इट्स नॉट जस्ट कि मैं ग्रेजुएट हुआ, पीएचडी किया और मैं वहां पे पढ़ाने लग गया। मैं कर सकता हूँ, वो अलग बात है। बट उनका जो प्रेफरेंस रहता है, दे गेट यू द फैकल्टी विच आर मास्टर ऑफ देयर फील्ड्स। कैसे? ऑलरेडी अ पर्सन हु हैज वर्कड इन देयर डेडिकेटेड फील्ड फॉर 30-40 years एंड आफ्टर रिटायरिंग, वो उनको टीचिंग में ले आते हैं।
तो जो आपको वो समझा रहे हैं, जो आपका टीचर वो उस टाइम पे आपको समझा पाएगा, तो आप क्या कर रहे हो? इंडिया में हम क्या करते हैं, हम बुकिश नॉलेज लेते हैं। यूएस में वो प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिलवाना चाहते हैं। तो हु इज अ बेटर पर्सन देन एक बंदा जो ऑलरेडी काम कर चुका है अपने फील्ड के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, किसी के अंदर काम कर रखा है, और वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो बुक्स में जो होता है और जो एक्चुअल लाइफ में होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको वो डिफरेंस जो है वो आपको वो अच्छे से बता पाएंगे। एग्जाम्स पे जो हमारा एम्फेसिस है, क्या है हमारा? अगेन हमने बताया कि हम सिर्फ एग्जाम्स पे, सीबीएसई में पढ़ लो बेटा, टेंथ में स्कोर ले आओ, उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी। ट्वेल्थ के बाद स्कोर ले आओ तो बेटा बीटेक कर लो, आसान हो जाएगी। बैचलर्स, बैचलर्स के बाद बेटा मास्टर्स में आसान हो जाएगी। वो आसान कभी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस ही हमेशा एग्जाम्स रहा है कि हम एग्जाम्स क्लियर कर लें, अच्छे नंबर ले आए, अच्छी रैंक ले आए, क्लियर कर लें, उसके बाद हम अच्छी जगह लग जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मार खा जाते हैं। एग्जाम्स बाहर भी लिए जाते हैं, यूएस भी लेता है, बट वो सिर्फ एंटायरली आपकी, जो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन नहीं करता है, आपको जज नहीं किया जाएगा। ठीक है। यूएसए की अगर स्ट्रेंथ बात करें तो अगेन आई हैव टोल्ड यू, इनोवेटिव लर्निंग है, बहुत डिफरेंट उनका कल्चर है, प्रैक्टिकल एबिलिटी डिपेंड करते हैं वो। डेवलपमेंट की बात करें तो उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, आपका ओवरऑल प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं वो। उनको ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए जो वहां से ग्रेजुएट हो गया और बस वहां से नौकरी मिल गई। नौकरी तो बेटा सबको मिल जाएगी वहां से करने के बाद। वो चाहते हैं कि कल को अगर आप कुछ एक अच्छी पोजीशन पे आते हो या बहुत अच्छा फेमस होते हो, सो इवन दे हैव हैंड इन योर करियर। वो बोल सकते हैं कि भाई ये स्टूडेंट हमसे पढ़ा था, हमने पढ़ाया। ठीक है। स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो हमारी वीकनेस है, ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा है, वेल इक्विप्ड है, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं इनके पास, और डेडिकेटेड सेंटर्स होते हैं। एक ही आपके डिपार्टमेंट के अंदर 3 से 4 इनोवेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर्स बना दिए थे। इवन दो इंडिया में अब रिसर्च का फंडा, मतलब जो फैशन है, बहुत ज्यादा हो गया है, यूएसए में बहुत पुराना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि अगर आपकी डिग्री यूएसए से है तो आपको एक ग्लोबल एक्रेडिटेशन मिलता है। ठीक है, आपको ग्लोबली रिनाउंड एक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। कल को अब मोस्टली आप यही करते हो ना, आईआईटी से आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो? बहुत सारे कॉलेजेस हैं, करवाता तो आपको थापर भी है, करवाता आपको एमआईटी भी है, करवाता आपको डीसी भी है, बट आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहती है? मेरे को आईआईटी जाना है। क्यों? क्योंकि आपको वो टैग चाहिए। वो टैग का फायदा क्या है वो आपको भी पता है। सो अगर आप एक टैग की बात करें तो यूएस से जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हैं। मैं एक फन फैक्ट आपको देता हूँ, अगर आप रैंकिंग वाइज चेक करोगे, सो यू कैन फॉलो क्यूएस रैंकिंग्स। ठीक है, तो क्यूएस रैंकिंग्स में फॉर एनी सब्जेक्ट यू पिक, यू कैन सी इन टॉप 100 रैंकिंग, जो आपको यूनिवर्सिटीज की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, उसमें हमेशा टॉप 100 के अंदर मोर देन 20 to 25 यूनिवर्सिटीज वुड ऑलवेज बी फ्रॉम यूएसए। एंड ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग यू, आई एम टेलिंग यू कि टॉप 20 के अंदर भी कम से कम आपकी 5 से 10 यूनिवर्सिटीज यूएसए की रहती हैं। टॉप 20 रैंकिंग्स उस सब्जेक्ट के लिए, उसमें यूएसए रहता है। तो यूएसए का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और यूनिवर्सिटीज ग्लोबली रिनाउंड है। अगर मैं ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं ना आपकी, तो यूएस की तो सारी आपको पता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, यूसी बर्कले, ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप 10 के अंदर रहती हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। इंडिया की जो पहली यूनिवर्सिटी आती है आईआईटी बॉम्बे, अगर आप सर्च करोगे, सो वो 200 प्लस रैंकिंग के बाद उसका फर्स्ट रैंक मिलता है। तो हम अभी बहुत लैग कर रहे हैं उसमें। इनकी वीकनेस क्या है? यस, कॉस्ट। कॉस्ट की अगर बात करें तो यस, खर्चा ज्यादा होता है, बट अभी हम इसके आगे अभी और बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि खर्चा हमको जो जितना लग रहा है उतना होता नहीं है। ठीक है, उसको कम कैसे किया जा सकता है हम ये भी देख सकते हैं। स्टैंडर्ड्स वेरी कैसे करते हैं? अब आप सोच रहे हो कि सर स्टैंडर्ड्स वेरी कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है यूएसए का, वो ना स्टेट बेस्ड है। तो जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स के अंदर जो जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जितना भी खर्चा है, उनका जो भी फंडिंग है, उनका जो भी करता धरता जो हम कहेंगे, वो स्टेट्स होती हैं। अब सिंस स्टेट्स हर स्टेट अलग क्राइटेरिया से डील करती है, तो उनमें स्टैंडर्ड्स जो है वो वेरी हो जाते हैं। बट क्वालिटी आई वुड से स्टिल इंडिया से बहुत बेटर रहेगी, ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी लेवल देती है। आ जाते हैं जी आपके मेन चीज पे। अभी आपको जे मेंस का कट ऑफ आपने शायद चेक कर लिया होगा, 24 का आया है। तो मैं एक सिर्फ सा एग्जांपल आपको बस लेके दे रहा हूँ कि पहली बात तो आपको पता होगा कि पिछले साल के कट ऑफ जो अब आए हैं, उसमें इंक्रीज हुआ अराउंड 2.5% एंड दिस विल ग्रो ग्रेजुअली, ये बढ़ता जाएगा।
ठीक है, तो जनरल कैटेगरी जो 24 का कट ऑफ है हमारा, इफ यू लुक है, सो दैट इज 93.23 परसेंटाइल, ये आपको चाहिए जी। ठीक है, लास्ट ईयर यही जो थी वो थी 90.77, so again you can see around 2.5% इंक्रीज। सिमिलरली अगर ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 24 में यू रिक्वायर अराउंड 79.67 परसेंटाइल, बट यही आप पिछले बार देखो तो अराउंड ये आप देख सकते हो 6% का ड्रास्टिक चेंज है जो ओबीसी में 73.61। सो आई हैव द डेटा फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी, बट वो रिलेवेंट नहीं है, मैं शेयर अभी नहीं करूंगा। इफ यू वांट यू कैन आस्क मी सेपरेटली, या आप सर्च कर सकते हो। सीयूईटी जो बच्चे दिए हैं सर, हम सीयूईटी वाले भी, आप आईआईटी की बात क्यों कर रहे हो, तो ठीक है भैया सीयूईटी वाले बच्चे भी हैं। तो आपको ये बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड स्कोर्स हैं इस बार के कट ऑफ के बाद, तो भैया आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स आपको डीयू में अगर करना है तो ये रिक्वायर 98 प्लस। ठीक है जी, आपको बीएससी ऑनर्स मैथ्स करना है तो 97 प्लस, बीकॉम ऑनर्स 96 प्लस एंड बीए ऑनर्स 95 प्लस। आप खुद सोचो कि कंपटीशन कितना अच्छा कंपटीशन है अभी जिस पे आप डील कर रहे हो, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू वांट गेट थ्रू टॉप कॉलेजेस इन डीयू, है ना। सम ऑफ देम, लेट्स से मैं नाम लेता हूँ, एल एलएसआर लेडी श्री राम में अगर किसी को पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ जो एक्सपेक्टेड सीओटी के कट ऑफ है वो बीए ऑनर्स अगर आपको करना है तो यू वुड रिक्वायर अराउंड 90 टू 92। सेम हंसराज में अगर आपको जाना है तो 96 टू 98, दौलत राम 98 टू 99.5, मिरांडा 98 टू 100, रामजस 98 अगेन टू 100। श्री राम सिर्फ बीकॉम कोर्सेज करवाता है, तो श्री राम कॉलेज आपको पता है एसआरसीसी इज वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। 99 टू 100, लास्ट ईयर 99 पॉइंट आई थिंक 73 या 53 पे फुल हो गई थी सीट्स। एसजीटीबी खालसा की बात करें तो 97 टू 98 अगेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दैट 98 99%, दैट डिपेंड्स अ लॉट। सेकेंड मार्क्स की अगर बात करूं तो ठीक है अगर आपने कर भी लिया, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम दीज टॉप इंस्टीट्यूशंस हैव गॉन टू अर्न मोर देन अगेन 70 टू 80 lakhs। देखो बेटा, मेन बात होती है कमाने के लिए, पढ़ने ठीक है पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, एंड गोल क्या है आपका कि भैया आपको पैसा कमाना है, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ना, क्या यू वांट टू डू समथिंग, आपको आगे जाके पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद आपको पैसा कमाना है, यू वांट टू वर्क। तो वो पैसा अगर मेरे को ज्यादा मिल रहा है तो मेरे को नुकसान क्या है, मेरे को तो ज्यादा पैसा कमाने का लालच होना चाहिए ना, कि ठीक है मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लालच अगेन आई वुड से ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, आपकी एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, बट अगर कंपैरिजन फिर से किया जाए बाहर से तो एजुकेशन हमने को बाहर यूएसए में बहुत बेटर मिल रही है। सेकंड जो मेरा मेन अल्टीमेट गोल है, पैसा मेरे को अच्छा कमाना है, वो मेरे को यूएसए अगेन दे पा रहा है। अब आ जाते हैं जी कि सर प्रिपेयर कैसे किया जाए यूएसए जाने के लिए, यूएसए में क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेरे को नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए आई कैन हेल्प यू आउट। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको फैक्टर मैंने बताया आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, एक प्लान बनाना है, आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू स्टडी अब्रॉड और नॉट। ठीक है, मैंने प्लान किया, फिर मेरे को सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए कि आई नीड टू सर्च कि भैया कैसे, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो सब कैसे होना चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, डेडलाइंस क्या है, फीस कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोगों को ये नहीं पता चलता कि ठीक है आपने वो सर्च कर लिया कि सर मेरे को ये यूनिवर्सिटीज हैं, बट मेरे लिए क्या ये प्रोग्राम और क्या ये मेरे लिए यूनिवर्सिटी ठीक है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आपको टेस्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको एसएटी की रिक्वायरमेंट है, एसीटी देना है, आइल्स देना है या टोफल देना है, कितने मार्क्स चाहिए, क्या कट ऑफ है उसके लिए, आपको कितनी यूनिवर्सिटी आपको रैंकिंग पे वो मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आपके जो एसेज हैं वो बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपका रिज्यूमे बनाया जाता है, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं, वो इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। देन आपको स्कॉलरशिप्स भी फाइंड करनी है, आपको स्कॉलरशिप देखनी है मेरे को मिल रही है नहीं मिल रही है। ठीक है, आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है डेडलाइंस पे। सो यूएसए में देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रायोरिटी डेडलाइन,
तो वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। प्रायोरिटी डेडलाइन मींस जैसे ही आपकी एप्लीकेशन उनके पास आती है तो प्रायोरिटी पे रख के आपको एडमिशन हम देते हैं। और हाँ, उसमें आपको कमिट करना पड़ता है कि अगर मेरे को आपने इस यूनिवर्सिटी ने मेरे को एडमिशन दिया तो मैं किसी और में अप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है। एंड लास्ट है कि आप अपना एडमिट लेटर लो, अपना वीजा लगवाओ एंड देन फ्लाई। अब प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रोड मैप मैं देता हूँ आपको। अगेन, आपका प्रोफाइल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट को लगता है कि वो बहुत अच्छा है और उसको एमआईटी तो कम से कम जाना है, उसको स्टैनफोर्ड जाना है, हमको हार्वर्ड जाना है। बट क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी प्रोफाइल है, क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी की मीट कर पा रही हैं, ये आपको नहीं पता होता है। फिर टेस्ट कौन सा प्रिपेयर करना है, कब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को नहीं पता होगा, अगर पता है तो वेरी गुड। एसएटी जो एग्जाम है वो साल में 5 बार होता है, तो आपको कौन से वाले में अपीयर करना है। अगेन, ये आपका एक कोई काउंसलर हो तो वो आपको उसमें एड कर पाएगा कि कब प्रिपेयर करना चाहिए। यूजुअली आप क्या गलती करते हो, स्टडी अब्रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज और भी अच्छी बता दूं कि अनलाइक योर IIT JEE और CUT, you don't need to start preparing in your 9th standard itself. पेरेंट्स आजकल 8 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। So best time to go to a counselor or getting yourself sorted for education abroad, specifically in USA, is after you finish your 10th standard. 10th standard, अभी जो आपकी छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनालाइज दिस। आपको क्या अपना रोड मैप रखना है, वो सॉर्टेड होना चाहिए। एग्जाम कब लेने हैं, कौन सा एग्जाम लेना है, कितनी बार लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग के अंदर यूनिवर्सिटीज कौन सी होनी चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटी अप्लाई करूं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है। कैसे, आपकी एप्लीकेशन फी जाती है। ठीक है, आपको अप्लाई करने के लिए ऑन एवरेज $90 पर यूनिवर्सिटी आपको फीस देनी पड़ती है, एंड दैट इज पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड। फिर आपके राइटअप्स, रिज्यूमे, LOR, SOP वेल रिटन है, टॉप नॉच है। क्योंकि आप खुद सोचो, इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई टू अ यूनिवर्सिटी लाइक्स ऑफ हार्वर्ड, कोलंबिया, तो वहां पे सारे स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्वियसली आप उनसे परसेंटेज पे डील मत करना, उनके साथ कॉम्पीट उस पे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरा 60% का क्राइटेरिया है, मैं 60% में रुक गया। आई कैन नॉट हैव एन एम ऑफ गेटिंग इनटू अ कोलंबिया विद 60%, व्हेन आई नो कि वहां पे 80 85 90% वाले बच्चे सारे अप्लाई करते हैं, तो 60% वाले को एडमिशन क्यों देगा? अनटिल अनलेस यू हैव अदर थिंग्स टू ऑफर, लाइक आपका एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा है। 60% इज स्टिल अ टफ टास्क, बट मैं डिसहार्टन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि लेट्स से इफ यू हैव प्लेड इंटरनेशनल लेवल पे, कोई स्पोर्ट्स खेला है या ओलंपियाड्स, आपने इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, नॉट योर SOF। मैं आपको पहले बता दूं, समवन हु इज इनटू SOF ओलंपियाड्स, एंड वो आपको हेल्प नहीं करने वाले। ठीक है, वो इंडियन ओलंपियाड्स हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कोर्स यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर लिया, अच्छा ठीक है भैया, अप्लाई कर दिया, मेरे को एडमिट्स आ गए, मैंने 8 9 जगह अप्लाई किया, तो अब मेरे को एडमिट्स आ गए 3 4 से, कहाँ जाया जाए यही नहीं पता होता है, कहाँ जाया जाए, मेरे लिए बेस्ट कौन है। हमने क्या किया, रैंकिंग चेक कर ली कि सर रैंकिंग में ना ये टॉप 10 में आ रही है, टॉप 50 में आ रही है। तो बेटा, आपको वो जो रैंकिंग है या आपके पेरेंट्स को वो रैंकिंग आपको कैसे पता? आपने तो वो रैंकिंग स्ट्रक्चर चेक कर लिया, बट वो रैंकिंग मिली किस बेसिस पे है आपको कई लोगों को पता ही नहीं होता है, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। वो रैंकिंग का एक्चुअली क्राइटेरिया अगर मैं देना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ किस बेसिस पे आपको रैंकिंग मिलेगा। आपको यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग मिलती है वो उसके प्रोग्राम की स्ट्रेंथ पे मिलती है। ठीक है, उसकी रेट, एक्सेप्टेंस रेट क्या है, कि वेदर इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उस पे मिलती है। उसके जियो ग्राफिकल प्रेफरेंसेस होते हैं कि स्टूडेंट के लिए वो बेटर यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी, जो मीडियम पैकेज आपको मिलता है, वो यूनिवर्सिटी आपको कितना दे रही है। कैंपस का साइज कितना है। ठीक है, स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशो कितना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने एनरोल हुए हैं वहाँ पे, इनके पास कोई एक्रीडेशन है या नहीं है। ये सारी चीजें मिला के ना, जो आपके ये रैंकिंग सिस्टम्स जो है, ये आपको रैंकिंग मिलती है, तो आपको नहीं पता है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। फॉर समवन who wants to get into a good university in USA, रैंकिंग आप छोड़ दो अलग से। ठीक है, आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। फॉर यू, द बेस्ट यूनिवर्सिटी वुड बी फर्स्ट, जो प्रोग्राम आप पढ़ना चाह रहे हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्या उसका करिकुलम उससे मैच कर रहा है जो आप पढ़ना चाह रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आजकल बहुत डिमांड में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की, सर मेरे को उसमें ही जाना है। ठीक है, तो अगर मेरे को AI में जाना है, तो क्या वो जो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है मेरे को कंप्यूटर साइंस का इस यूनिवर्सिटी में XYZ में,
क्या ये मेरे को एआई से रिलेटेड ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, या एआई से मेरी कंसंट्रेशन या मेरे को मेजर करने का ऑप्शन दे रहा है, या इसमें मेरा कोई ज्यादा फायदा है, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो मैं पढ़ना चाह रहा था जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा। फर्स्ट आपको चीज ये देखनी है। सेकंड आपको देखना है कि आपका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, खर्चा कितना है, क्योंकि खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोगों के लिए तो नहीं होगा बट आपके पेरेंट्स की पॉकेट्स पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो वो पैकेज जो खर्चा आ रहा है, क्या वो मेरे बजट में है, मेरे पेरेंट्स के बजट में है, क्या मैं उसको इजिली रिटर्न ले पाऊंगा। थर्ड फैक्टर आपका इनफैक्ट वही है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका आरओआई कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैचलर्स का कोर्स करने जा रहे हो 4 इयर्स का, एंड योर पेरेंट्स वुड बी स्पेंडिंग अराउंड, एग्जाम्पल लेके कह रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटीज, ऑन एवरेज लेट्स से यू स्पेंड अराउंड 1 CR और 1.2 CR आपकी ओवरऑल ट्यूशन फी पे। तो क्या वो 4 साल में जो मैंने अपने माँ बाप का जो 1.2 या 1 CR लगवाया है, क्या मैं वो 2 से 3 साल में रिकवर कर सकता हूँ? तो बिल्कुल यूएस आपको अपॉर्चुनिटी देता ही है। क्या वो यूनिवर्सिटी में को मीडियन जो मेरी सैलरी मिलेगी, क्या उसके बेसिस पे मैं ये पैसा खर्चा अपना उठा सकता हूँ? तो यस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये तीन चीजें आपकी सॉर्टेड हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी जो आपके एडमिट्स आए हैं उसमें डिसाइड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब कॉस्ट तो बहुत सारी एसोसिएटेड हैं भैया मेरी, कि कौन कौन सी कॉस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फर्स्ट जो है दैट इज ट्यूशन फी। ट्यूशन फी अगेन मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत सारे काउंसलर्स कहते हैं, या आप लोगों का जो मिसकंसेप्शन है ना, वो क्या है कि भैया ट्यूशन फी जो है ना बहुत महंगी है और बाहर पढ़ना ना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, किस कोर्स के लिए जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, किस रीजन में जा रहे हो उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि सर मेरे को मास्टर्स करनी है, एमबीए, समवन हु वांट्स टू डू एमबीए, तो एमबीए का ऑब्वियसली आपको जो खर्चा पड़ेगा दैट विल बी कॉस्टली, वो परस्यू करना आपको कॉस्टली पड़ेगा। एक आर्ट्स डिग्री को, आर्ट्स डिग्री सस्ते में आप कर सकते हो, एमबीए करने में आपको खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। एमबीए का खर्चा आपको ऑन एवरेज मैं बताऊं तो लेट्स से आपको $70,000 to $60,000 पर ईयर पड़ जाता है। यही आर्ट्स डिग्री अगर आपको करनी हो तो you'll be spending around $30,000 to $35,000। इट्स हाफ, लेस देन हाफ आई वुड से, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि वो 4 साल के लिए होते हैं, ठीक है। आपकी मास्टर्स डिग्री है, जो यूजली हमको कहा जाता है ना कि मास्टर्स करना सस्ता है, आजकल वो फंडा चेंज हो गया है। जो मैंने आपको फिगर्स दी थी कि अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स जो गए हैं, बाहर पढ़ने गए हैं, 2024 का डेटा जो कह रहा है, उसमें मेजरली अब जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है दैट इज मोर स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेड लेवल दे आर गोइंग टू स्टडी अब्रॉड रादर देन पहले जो फैशन होता था कि मास्टर्स करने जाएंगे जी, ठीक है। उनको पता है कि मास्टर्स में आजकल जो खर्चा आ रहा है और अंडर ग्रेड में अगर अच्छी यूनिवर्सिटी जो मेरा सॉर्टेड है स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट गो एट दिस टाइम, क्योंकि अंडर ग्रेड में जाओगे तो ज्यादा फायदा मिलता है अपर हैंड के। क्यों? यू गेट 4 years टू ऑफ स्टडी, आपको वहां पे स्टे बैक का ऑप्शन मिलेगा फॉर अराउंड 3 years। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ स्टेम प्रोग्राम्स तो प्लीज गूगल इट और गेट इन टच विद मी, आई लेट यू नो कि स्टेम प्रोग्राम्स क्या होते हैं, क्या फायदा मिलता है। and after that you can enroll yourself into a master's program, again 2 years, again 2 to 3 years of STEM प्रोग्राम। तो आपका स्टे काफी बढ़ जाता है, आप सिस्टम के अंदर घुल मिल जाओगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। मास्टर जब करने जाते हो तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर होता है, रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हो जाती हैं, स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सिटी के हाई हो जाते हैं, एंड देन यू गेट ओनली 1 or 2 year, क्योंकि आपकी डिग्रीज 1 से 2 years के बीच की होती है मास्टर्स, एंड देन यू गेट अराउंड 2 to 3 years ऑफ ओपीटी एक्सटेंशन। उसके अंदर आप अगर कुछ कर सकते हो तो ठीक है, यू कैन फाइल योर H1B वीजा वर्क परमिट के लिए। अगर नहीं मिलता है तो इंडिया वापस आना पड़ेगा, नुकसान उसका भी नहीं है, अब यहाँ पे आप ये कमा सकते हो। बट अंडर ग्रेड में ये होता है ऑफ टाइम इन योर हैंड, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। एवरेज कॉस्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ ट्यूशन फी की, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 4 year कॉलेज डिग्री अटेंड करने वाले हो किसी पब्लिक कॉलेज के अंदर, तो आपकी ऑन एवरेज जो ट्यूशन फी है दैट इज अराउंड $30,000। आप 84 82 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड योर, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो वो फीस आपकी अराउंड 40,000 हो जाती है, तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ लेट्स से $10,000। अब सिर्फ ट्यूशन फी की कॉस्ट जो है वो ही एसोसिएट नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं।
सो मेजर जो फैक्टर नेक्स्ट आता है दैट इज लिविंग एक्सपेंस। मेरा लिविंग एक्सपेंसेस मेरे एसोसिएटेड है। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में और किस रीजन में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी जो है प्रिंसटन है, हार्वर्ड है, येल है, सब महंगी यूनिवर्सिटीज हैं। कहाँ कहाँ है लोकेटेड? बॉस्टन में, न्यूयॉर्क में, कैम्ब्रिज में। तो ये जितनी अर्बन एरिया में आप जाओगे, जितनी अर्बनाइज यूनिवर्सिटीज और एरिया में ये यूनिवर्सिटीज आएंगी, तो उतना सा कॉस्ट आपको बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देते हैं। दिल्ली में अगर मेरे को रहना है और वहीं अगर मेरे को लेट्स से रेवाड़ी में कहीं अपना रेंट लेना है, तो ऑब्वियसली आई विल बी पेइंग मोर रेंट इन दिल्ली। और एज कम्पेयर टू गुड़गांव, तो गुड़गांव का रेंट थोड़ा सा दिल्ली के पॉश एरिया से कम होगा। सो यू कैन हैव अ कंपैरिजन। ठीक है। अगेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जो लिविंग एक्सपेंस है, वो आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, अगेन आपकी लाइकिंग पे डिपेंड करेगा। सम स्टूडेंट्स दे कैन नॉट लिव ऑन शेयरिंग बेसिस। तो देखो, अगर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है तो भैया यू नीड टू पे मोर। अगर आप शेयरिंग में दो के साथ रहना चाहते हो तो आपको उसके हिसाब से पे करना है। आप शेयरिंग चार के साथ करना चाहते हो तो आपका रेंट और कम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको फैक्टर्स जो है ये दिमाग में लेके चलने होते हैं। ऑन एवरेज अगर बताया जाए तो लिविंग अकोमोडेशन कॉस्ट जो आपको स्पेंड करना होता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को यूएसए में, दैट इज अराउंड $15,000 to $20,000। आईएनआर में बात करें तो मोटा मोटा मान के चलो इसको 8.5 से 9.5 लाख पर ईयर आपको अपनी लिविंग कॉस्ट अपने अकोमोडेशन के लिए आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या कॉस्ट हो सकती हैं? तो भैया खाना पीना तो है ही है, स्टडिंग एक्सपेंसेस के साथ कुछ और कॉस्ट होती हैं। जैसे आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, आपको वहाँ पे एंसिलरी फीस, टेक्स्ट बुक्स, आपके जो विजिटिंग जो आपके कार्ड्स बनेंगे, लाइब्रेरी कार्ड्स और ये सब, उसकी फीस आपसे ली जाती है। क्लोथिंग जो आप वहाँ पे शॉपिंग करना चाह रहे हो, एंटरटेनमेंट जो मूवीज देखने जा रहे हो, क्लबिंग करने जा रहे हो, उसके खर्चे वो आपको अपने देखने पड़ेंगे। अगेन अगर ये सब कुछ मिला लें तो not too lavish, but you will be spending let's say around 12 to 13 lakh per year on your uh, cost excluding tuition fee। ठीक है। एंड देन आपको मैंने बताया फीस और क्या क्या एसोसिएटेड होती है कि while you are applying आपको एप्लीकेशन फीस देनी होती है। along with that जब आपका वीजा आप फाइल करोगे तो वीजा के लिए आपको एक छोटी सी 14,500-15,000 की आपको फीस देनी पड़ती है। तो एक आपके हेल्थ इंश्योरेंस होती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी होता है, वो यूजुअली ट्यूशन फी में इंक्लूड करके आपसे यूनिवर्सिटी मांग लेती है। तो ये सारी कॉस्ट हैं जो हमको ध्यान में देना है। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक अच्छी से समझा देता हूँ। अगेन जरूरी नहीं है कि ये जो कॉस्ट हैं सारी ये हमेशा हायर साइड पे रहे। सो एक अच्छा काउंसलर आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में गाइड करा सकते हैं सस्ते में। अगर कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है वो कहता है कि सर मेरे को एक टॉप यूनिवर्सिटी से मेरे को एजुकेशन अपनी लेनी है, बजट का मेरा कोई फंडा नहीं है, तो आई कैन इजिली सेंड यू टू यूनिवर्सिटीज लाइक्स ऑफ मिशिगन, कोलंबिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, यूसीएलए, क्योंकि वहां पे लिविंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका अगर फंडा है कि सर मैं मैक्सिमम खर्च सकता हूँ अराउंड लेट से 20 लाख रुपए या 16 लाख रुपए, तो वहां पे भी आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी वो यूनिवर्सिटीज। अगेन आई वुड से दे आर मिडिल रैंक यूनिवर्सिटीज। यस, अगर आप कोलंबिया, हार्वर्ड उनसे कंपेयर करो तो उनकी फीस भी अराउंड $60,000-80,000 होती है पर ईयर। अगर मैं उसके कंपैरिजन में करूं, सो अगर हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज देखते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ हम जाते हैं कैलिफोर्निया में, तो वहां का एजुकेशन सिस्टम भी मोर और लेस वो सेम ही है रहे। कैलिफोर्निया है, इट्स अ हब ऑफ कंप्यूटर साइंस। आप जो ट्यूशन फी पे करोगे दैट वुड बी अराउंड 18 to 19 to 20,000 डॉलर्स पर ईयर। एंड जो आपको पैकेज मिलेगा दैट इज अगेन अ हैंडसम पैकेज। आप अगर कंपैरिजन उससे करो कि जो आपने स्पेंड किया है उससे तो बहुत ज्यादा पैकेज आपको मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रख के चलनी है। इट्स नॉट स्टडिंग अब्रॉड इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड मेजर आता है कॉस्ट काटी कैसे जाए, कैसे कम की जाए, कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। तो कॉस्ट कम हम कर सकते हैं बाय लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप में क्या क्या फंडा है मेरे पास, कैसे हमको स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो बहुत सारी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो की जो टाइप्स हैं आपकी यूनिवर्सिटीज, जो आपकी स्कॉलरशिप जो क्या
तो फर्स्ट इज के अंदर साथ में ही स्कॉलरशिप दी जाती है। सो मेजरली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनको मैं करवाता हूं, उनको मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो जो स्कॉलरशिप यूएस हाफ ऑफ इट, $15,000 अगेन बहुत अच्छा ऑफर होता है वो। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स किसके लिए अप्लाई करवाई जाती हैं, कौन अप्लाई करते हैं? कि जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है, सिचुएशन वो सही नहीं है एंड वो जस्टिफाइड है, डिग्री का सर्टिफिकेट है मेरे पास, या पेरेंट्स की इनकम इतनी नहीं, 80 to 100% के बीच की मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल योर प्रोफाइल, हाउ गुड योर प्रोफाइल। डेस्टिनेशन स्पेसिफिक की अगर बात करें तो अगर आपने सुना होगा कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ क्वाड नेशन, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टाई अप है। तो बहुत सारी, इनफैक्ट यूके में भी कई यूनिवर्सिटीज हुआ करती हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो इंडियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स करके होता है, वो आपको स्कॉलरशिप्स पहले मिल जाती हैं कि आप बेस्ड ऑन योर रीजन वेयर यू कमिंग फ्रॉम, कंट्री स्पेसिफिक जो आपकी वो है, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अगेन फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस स्कॉलरशिप। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो ही गोइंग टू यूके फॉर दिस सितंबर। Again, he has got Indian international scholarship, merit scholarship मिली है उसको based on India. So even he has got around 3,000 to 4,000 pounds. ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप रिसर्च में जा रहे हो तो रिसर्च फील्ड के अंदर, लेट्स से इफ यू आर गेटिंग इनटू योर डॉक्टरेट प्रोग्राम, तो आपको काफी लोगों को पता ही होगा कि ऑलमोस्ट हम कहते हैं फ्री है। वो फ्री ऐसे होता है कि आपको जो ट्यूशन फी और जो आपका खर्चा है वो स्टाइपेंड के थ्रू आपको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे आपको 100%, अराउंड 90 to 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्पोर्ट्स बेस्ड, वेरी वेरी न्यू, वेरी इनफैक्ट आजकल बहुत ग्रो कर रहा है ये, कि समवन हु इज इनटू प्लेइंग स्पोर्ट्स, अगर उसको स्पोर्ट्स खेलने के आगे परस्यू करने जाना है, तो मेरे दो स्टूडेंट्स हैं अभी जिनका हम एप्लीकेशन हमने लिया है। सो दे बोथ प्ले टेनिस। तो उसमें क्या है कि यू आर प्लेइंग टेनिस एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, आपने वो अपना एज अ करियर परस्यू करना है। इट्स नॉट जस्ट हैव योर एजुकेशन, सिर्फ आप अपना करियर टेनिस में बनाओगे, बट अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव अ गुड एजुकेशन फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी। सो टीयर्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 जो है, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है स्पोर्ट्स बेसिस में। जो बहुत सारे जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंडिया की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा, और अलग अलग बेस्ड ऑन अगेन योर प्रोफाइल दे गिव यू स्कॉलरशिप्स। सो फ्यू ऑफ द स्कॉलरशिप्स आपके सामने हैं। सो यू हैव स्टैनफोर्ड, रिलायंस धीरू भाई, इनका टाई अप है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और धीरू भाई अंबानी का, तो ये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। रोटरी फाउंडेशन, आईएफए, उपकार, ऑड फेलोशिप, टाटा, टाटा भाई साहब, रतन रतन टाटा इज अ फिलंथ्रोपिस्ट, आपको पता होगा, तो वो अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। फुल ब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप्स, एशियन वुमेन इन बिजनेस स्कॉलरशिप फंड। सो कोई भी गर्ल कैंडिडेट अगर वो जा रही है कोई अच्छे बिजनेस स्कूल में पढ़ने, तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। शिवदासानी फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, इंडियन ट्रस्ट फेलोशिप है, सीड है, ह्यूबर्ट हम्फ्री है, बहुत सारी आपको अख्तर अली टोबैको वाला फेलोशिप है, एक स्कॉलरशिप है यू आर वेलकम है। अगेन अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक आपको इमर्जिंग ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप देती है। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप मिली थी, अगेन सेम यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी। उनका टोटल प्रोग्राम फीस था $60,000 एक साल का, उनको $25,000 की स्कॉलरशिप मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि स्टडी अब्रॉड हमेशा महंगा रहता है, नहीं, आपको सही टाइम पे सही जगह अप्लाई करना है, आपको करेक्ट यूनिवर्सिटी पिक करनी है। अगर ये आप टाइमली कर पा रहे हो तो स्टडी अब्रॉड अगेन बहुत एक ल्यूक्रेटिव है आपके लिए, फ्यूचर ऑप्शंस आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। And even if you decide to come back to your nation, you want to come back to India, so either you can start your startup, अपना एजुकेशन आप टॉप नॉच लेके आए हो, ठीक है, आप कनेक्शंस अपने बहुत अच्छे बिल्ड करके आए हो, जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मिल रहे हैं। और अगर नहीं भी यहाँ पे अगर आपको अपना जॉब करना है, तो अगेन जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे अपने ऑफिस सेटअप करके बैठे हैं, अगेन उनकी टॉप प्रायोरिटी कौन है? एक वो बच्चा जो बाहर से अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेके आया है, क्योंकि उनको पता है कि यूएसए ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं जो यहाँ पे, ये नहीं कहेंगे नहीं मिलती है, मिल सकती हैं, बट उस लेवल पे आपको नहीं मिल पाती।
That's all from my side. Ritika ma'am, मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाह रहा हूँ. So if the parents or if the students want to discuss something, want to ask something, I'm open to answer their questions. Hello. Uh, Thank you so much, sir, for such a wonderful session. It was a wonderful session. We would love to join you for more session in the future too. For any queries or personal session, kindly contact us after the session. Thank you so much again. So there is some message in the chat box. Please Sure. go ahead. Can you please share the PPT with us? Sure, I'll do that. I'll send it over to Ritika. She can share it with you. How can we connect with you? Again, you can ask El Mastro. They can like connect you with me. PS, thank you very much. Thank you for attending. See, my whole focus was आपको थोड़ा idea देना कि education abroad कैसे workout करता है. ज़्यादा details जो हैं, obviously मैं इतने कम time में तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता पाया, पर जितना मैं कर सकता था मैं उतना आपके लिए कर रही है. ज़्यादा information लेनी है, आपको कुछ पूछना है, आपको counseling session भी चाहिए, तो first of all मैं आपको बता दूं, counseling session के लिए हम charge नहीं करते हैं. वो काउंसलिंग सेशन अराउंड 15 to 20 मिनट्स का हम फ्री देते हैं. उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाहर नहीं बताई जाती हैं. तो मेरा फोकस क्या है, द रीजन बिहाइंड ओपनिंग माय ओन वेंचर. मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ. सो मैं एजुकेशन के फील्ड में ही रहा हूँ. सो मैंने अपनी मास्टर्स की, उसके बाद आई हैव टॉट इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज. इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने 1 साल पढ़ाया मैकेनिकल डिपार्टमेंट में. उसके बाद मैंने खुद अपना मास्टर्स के लिए अपना डॉक्टरेट के लिए यूएस में ट्राई किया था, अप्लाई किया था. फैमिली रीजंस की वजह से आई कुड नॉट गो, मेरे को एडमिशन मिल गया था. आई जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन जो स्टडी अब्रॉड में डील करते हैं. तो वहाँ पे मैं हेड क्वांट फैकल्टी रहा हूँ. आई टॉट सैट एसएटी के स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया, एसीटी, जीआरई, जीमैट, एपी. मैंने एप्लीकेशंस स्टूडेंट्स की करवाई हैं, उनको काउंसिल किया है. So I've taught more than 5,000 students now for various subjects. I have helped more than 2,000 students with their application process. And बहुत सारे students हैं जो मेरे already USA में, कहीं UK में, कोई ऑस्ट्रेलिया में अभी भी मेरे साथ टच में हैं. तो मेरा रीजन था अपना ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का. सो इट हैज टू बी फॉर द स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट को फायदा मिल रहा है तो हम स्टूडेंट का फायदा पहले देखे जाते हैं. काउंसलर आजकल क्या कर रहे हैं, जो आजकल मार्केट में काउंसलर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, दे जस्ट वांट टू चार्ज एंड मिंट मनी फ्रॉम अ स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि वो आपको यूनिवर्सिटीज में भेजना चाहते हैं जहाँ से वो पैसा कमा सकें. मेरा ऐसा सच कोई क्राइटेरिया नहीं है. मैं कोई पार्टनर नहीं करता हूँ किसी के साथ, ना टाई अप्स हैं. इट्स जस्ट दैट जो स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो, जो स्टूडेंट को फेवर कर रहा है, जो उस टाइम पे उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डाउन द लाइन 4 से 5 से 6 साल बाद वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं मेरे को याद रखेगा इस सर ने हेल्प किया था. ठीक है. तो अगर आपको कांटेक्ट करना है, आपको कोई सर्विस चाहिए, अगर आपको प्रिपरेशन की कोई सर्विस चाहिए, आपको काउंसलिंग सेशन चाहिए, आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस करवाना है, वीजास का कोर्स करवाना है, तो यू कम डाउन टू मी. आप मेरे पास आओ, मेरे से बात करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, मैं ज्यादा चार्ज में नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि एल मेस्ट्रो में पूनम मैम बैठे हैं. तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आपने मेरे को ये एक स्टेज दिया था.
Thank you very much, sir. It's a matter of great honor for us. सेम है मैम। तो कोई भी आपको कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है, डिटेल्स किसी चीज की चाहिए, आपको कोई पैकेज पूछना है, कुछ भी, आप मैम से कनेक्ट करके आप उनसे नंबर ले सकते हो, या मैम के थ्रू मेरे से कनेक्शन बना सकते हो। सो इट वर्क्स। अगर आपको किसी को भी अभी कुछ क्वेश्चन है, सो आई एम रेडी टू आंसर एट। Okay, so ma'am, that's all from my side. So जैसे भी students they want to connect, just let me know. जैसी भी assistance हो पाएगी मैं उनको दे पाऊँ। Thank you so much, sir, for such a wonderful session. And I request all the participants to fill up the feedback form to mark your attendance. Google form link has been shared in the chat box. Thank you so much, sir, once again. Thank you, ma'am. Thanks for your time.